Hello students, in our today's probability lecture, we are going to start with the further illustration number 20. The probability that a person would get promotion in his job is 0.6 and the probability that he will transferred is 0.7. The probability that he will get promoted and also he will transferred is 0.3. Find the probability that he will get the promotion and given that he is transferred. Second situation, he will be transferred given that he is promoted. He is get promoted and then he will transfer. And second situation is he will transferred first, then he will get the promotion. There are two situations. Let's calculate illustration number 20. What is given? He will get promotion. That is 0.6. That means first P of A is equals to 0.6. Then second, what is given? He will be transferred. Probability is 0.7. There are two events. First, he get promotion. Second, he will be transferred. So P of B is equals to 0.7. And third thing is, he will get promotion also and he will transfer also. That means both are event doing together. That means P A intersect B is equals to 0.3. Right? So what we have to find out? First we have to find out he will get promotion and then he will get transferred. प्रमोशन मिला है इसीलिए उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, यानी कि प्रमोशन इंडिपेंडेंट इवेंट है और ट्रांसफ़र किस पे डिपेंड है? प्रमोशन पे. अगर उसको प्रमोशन मिलेगा तो ही उसको ट्रांसफ़र होगी, यानी कि ट्रांसफ़र होगी उसकी पी बी कहेंगे और प्रमोशन मिलेगा उसे पी ए कहेंगे. इसको ए इवेंट कहेंगे, इसको हम बी इवेंट कहेंगे. So A event based on B event. So we have to find out P A slash B. What is the formula of the P A slash B? P A intersects B upon P B. That is 0.3 upon 0.7 is equals to 3/7. And the second situation is he will be transferred given that he is promoted. So now A is depend upon B. So here we will write B slash A. What is the formula? Same. PA intersects B, but denominator will differ. The base on event. On the basis of A, the effect on B. So base is A. So it will come in the denominator. So 0.3 upon 0.6 is equals to 3/6 is equals to 1/2. Understood? Now we will solve the illustration number 21. 6 books are to be arranged in the one shelf in a one row. Find the probability that the particular books are not side by side. That is, 6 books we have to arrange in a one shelf in a one row, but the two particular books cannot be side by side. So first we have to make the arrangement. So there are 6 books. Total arrangement, that means n can be 6 factorial. Any arrangement of the 6 books, you have to find out the permutation. Permutation will be n is equals to 6 factorial. 6 factorial give the answer of 720. Then here total 6 books will be there.
out of there are 2 particulars book, that is a 4 remaining books and 2 particular books will be there. But we have to arrange the books, 6 books, and this 2 particular book cannot be side by side. So how much arrangement we have to need? That is 4 other books and the one set of this 2 books, so out of 5. So total arrangement we have to do is 5, and remaining in the intersection of the 2 events. पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों की दोनों हमें साइड बाय साइड नहीं लगानी है, बट पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों साथ में आएगी, ये दोनों बुक साथ में यहाँ पे फिक्स आएगी. तो सेट कितने होंगे? 1 2 3 4, ये पूरे का पूरा सेट. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 5 फैक्टोरियल. और बाकी की 2 बुक्स हैं वो उसकी भी अरेंजमेंट हो सकती है. हाँ, हो सकती है, ऐसे चेंज हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2 फैक्टोरियल. सो टोटल इफ वी आर अज्यूमिंग दैट दोनों के दोनों बुक्स साथ में आएंगे, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल. और पूरे का पूरा अरेंजमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5 फैक्टोरियल. सो आंसर शुड बी 5 फैक्टोरियल एंड अ 2 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल आंसर इज 120 and 2 factorial answer is 2 is equals to 240. राइट. अभी हमें क्या सोचना है कि वो साइड बाय साइड नहीं आए. तो टोटल कितनी है? 720. उसमें से चांसेस हैं 240 में से तो साइड बाय साइड आएंगे. इसके अलावा जो भी अरेंजमेंट होगी उसमें वो दोनों बुक साइड बाय साइड नहीं आएगी. सो 720 माइनस 240, 480. सो अवर फेवरेबल कंडीशन M कि दोनों की दोनों बुक साइड बाय साइड ना आए, उसकी फेवरेबल कंडीशन है 480. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. P ऑफ A इज इक्वल्स टू M अपॉन N. M आएगा 480 एंड N आएगा 720. 480 डिवाइड बाय 720, इट विल कम 2/3. समझ में आया? और एक बार समझाती हूँ. हमें क्या करना है? ये पर्टिकुलर 2 बुक हैं वो साइड बाय साइड नहीं आनी चाहिए. तो नहीं आनी चाहिए इसलिए पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि साथ में कितनी बार आएगी. ठीक है, तो 1 2 3 4 वो बाकी की बुक्स हैं और ये 2 पर्टिकुलर बुक का सेट है वो साथ में ही रहेगा. तो अरेंजमेंट कितनी हो सकती है? 1 2 3 4, ये पूरे का पूरा सेट 5th. समझ में आया? अब ये पूरा सेट भी अरेंज हो सकता है तो उसे हम बोलेंगे 5 फैक्टोरियल. और ये 2 बुक्स है वो आपस में भी अरेंज हो सकती है, इसलिए हमने आया 2 फैक्टोरियल. तो टोटल अगर दोनों की दोनों बुक्स साथ में आई तो उसकी अरेंजमेंट हो गई 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. टोटल विल बी 240. यानी कि 240 तरीके से हम इसे साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं. हमें क्या करना है? साइड बाय साइड ना आए. सो टोटल में से साइड बाय साइड आने वाली है उसे हम माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो आंसर आएगा उसमें साइड बाय साइड नहीं आएगी. तो हमारा फेवरेबल केसेस क्या हो गया? 480. सो M अपॉन N इज इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाय 720, इट इज इक्वल्स टू 2/3. अंडरस्टूड? अब हम सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22. 6 boys and 3 girls are arranged randomly in a one row. Find the probability that all the girls are together. तीनों की तीनों गर्ल्स साथ में रहनी चाहिए. समझ में आया? तीनों की तीनों गर्ल्स साथ में रहनी चाहिए. सो हम उस हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं. Illustration number 22. There are 6 boys and 3 girls. और कंडीशन क्या है? तीनों की तीनों गर्ल्स हैं वो साथ में आने चाहिए, बाकी बॉयज तो चेंज हो सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6. This seats are reserved for the boys and remaining 3 girls are come together always. So उसका हम सेट बना लेते हैं
इसमें सिर्फ 3 गर्ल्स आएगी और ये पूरे का पूरा सेट चेंज होगा अरेंजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स आएगी, तो हमें टोटल ओवरऑल कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? सो 1 2 3 4 5 6 और ये सेट वाला 7, सो 7 फैक्टोरियल। अब ये तीनों गर्ल्स आपस में इंटरचेंज हो सकती है विद इन द सेट, यस हो सकती है। कितनी गर्ल्स हैं? 3, सो हम आएंगे 3 फैक्टोरियल। सो हमारा फेवरेबल कंडीशन दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। m इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, 540 into 6, 30240। अब हम n देख लेते हैं, n कितना आएगा? टोटल कितने हैं? 6 and 3, 6 plus 3 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम पहले P ऑफ A लिख देंगे, m अपॉन n कैंसिल हो सकता है तो कर देंगे। m क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। सो हम करेंगे 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 9 into 8 into 7 factorial। 7 factorial get cancelled। 3 factorial का हम कैसे लिखेंगे? 3:2:1 upon 9 into 8। 3 2s are 6 by 1। 3 3s are 9, 2 4s are 8, 1 upon 3 4s are 12। आंसर आएगा 1/12। ऐसे ही आप आंसर निकाल के भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ये 9 फैक्टोरियल का आंसर बहुत लंबा आ रहा है और उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए हमने इस तरह से कैंसिल आउट करके आंसर लिया 1/12। जब भी अरेंजमेंट होगा तो हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे, जब भी अरेंजमेंट होगा तब हम परम्यूटेशन करेंगे, और जब भी एक 5 बोल में से एक बोल सिलेक्ट करने हैं और ऐसा कुछ आएगा तो कॉम्बिनेशन आएगा। रिमेंबर वन थिंग, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24। द ऑड इन फेवर ऑफ ए इज गोइंग टू अमेरिका 2:3 एंड ऑड अगेंस्ट बी गोइंग टू अमेरिका इज 4:3। Find the probability that at least one of them will go to America, right? So first we are finding out the probability of A going to America. Will go to America. Ratio is 2:3. So how can we write the ratio in the fraction? Carefully understand. 3 plus 2 5. So 2/5. So A will go to the America. Probability is 2/5. Now B will go to America. Ratio is 4:3. यहाँ पे दिया क्या गया है? रेशियो दिया गया है फेवर का, ए की फेवर का है, ठीक है। तो फेवर का रेशियो है 2:3 और यहाँ पे अगेंस्ट का रेशियो है 4:3। अब दोनों का हमें कॉमन लेना है, या तो हमें फेवर लेना है या तो हमें अगेंस्ट लेना है। यहाँ पे हमने ए विल गो टू द अमेरिका इन फेवर हमने लिया 2, समझ में आया? जो पहले वो फेवर है, बाकी का है जो अगेंस्ट है। यहाँ पे क्या होगा? अगेंस्ट का दिया है, दैट मीन्स ये अगेंस्ट का हो गया और ये फेवर का हो गया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फेवर का।
सो फेवर का क्या होगा रेशियो, ये वाला रेशियो होगा. सो 3/7. Then B will go to the America, or in the favor is 3/7 and here favor is 2/5. Find the probability that at least one of them, या तो A या तो B, दोनों में से कोई एक अमेरिका जाए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज P ऑफ A इज इक्वल्स टू 2/5. दोनों में से एक अमेरिका जाए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो या तो A जाएगा या तो B जाएगा, और A B साथ में नहीं जा सकते. एटलीस्ट वन ऑफ देम मीन्स दोनों के दोनों साथ में तो नहीं जा सकते, या तो A जाएगा या तो B जाएगा. सो हम कैसे करेंगे, PA प्लस PB, एंड दोनों के दोनों साथ में नहीं जाएंगे. समझ में आया? इसलिए हमने फेवर का ही लिया, अगेंस्ट का लिया नहीं. इसे हम क्या कहेंगे, PA यूनियन B. अब हमें PA इंटरसेक्स B फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसमें अप्लाई होगा. सो PA इंटरसेक्स B, both are independent even. P intersects A intersects B is equals to PA into PB. So 2/5 into 3/7, 6/35. Now we are putting the value in this formula. PA union B is equals to PA plus PB माइनस PA इंटरसेक्स B. PA की वैल्यू आई 2/5, B की वैल्यू आई 3/7 माइनस 6/35. आंसर आएगा 14 प्लस 15 माइनस 6, 23. 23/35. Understood?